You want to start a YouTube channel, but you are also a student. That means you have a assignment deadline next week, exams next month, and piling up works, to-do list, going to school or college, coming back home, managing it all, and no time to edit. What to do? Well, I have been there and I'm still there as a student and a content creator. And I know it's very difficult to manage, and everyone will tell you that do time management or choose one of them. But no, it's your life and you have to do it all, because if not you, then who else will? So, is it easy? No. Will I do it? Yes, because I want to. एंड अगर आप भी चाहते हो कि आप भी कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करो या कोई किसी और हॉबी को रेगुलरली परफॉर्म करो, इट कुड बी एनीथिंग, नॉट जस्ट यूट्यूब, बट इफ इट्स यूट्यूब, दिस वीडियो इज फॉर यू. In this video, I will be telling you that how you can be a student and a content creator all together. Okay, I want you to ask yourself few of these questions. Number one, are you ambitious? If yes, watch this video. Do you really want to start YouTube, make your content, document your life, share your thoughts? If answer is yes, watch this video. Number third, do you have that spark in you to balance your academics, to get the knowledge, but at the same time simultaneously doing YouTube? If the answer is yes, this video is for you. After clearing your goal, I am going to break down that how you can achieve it. Number one thing, a plan, a weekly, daily, or a monthly plan. And you should plan what are you going to study, when are you going to study. Before executing anything, have a plan with you. First of all, it could be daily plan, it could be a weekly plan. इससे ज़्यादा बड़ा मत बनाना. Just a monthly plan, because you don't know what is going to happen the coming month. You even don't know what is going to happen in a week, but week is still a short period of time. You know your deadlines coming within a week, or the video you're going to post this week, or the shorts, everything. A monthly plan could be too long that you are going to be frustrated. And एक time ऐसा आएगा आप उससे बोर हो जाओगे and maybe आप उसे follow ना करो. So in short, make a short term plan. It could be a day plan, weekly plan, 3 days plan, anything. But start planning your things. You're going to schedule how you're going to schedule your editing, your shooting, your study, your test preparation, everything. आपके पास कितना काम है पहले वो लिखो. आपको शूट करना है, एडिट करना है, लर्न करना है, नोट्स बनाने हैं, असाइनमेंट देनी है, प्रेजेंटेशन बनानी है, इट कुड बी एनीथिंग, बट पहले काम क्या है वो क्लियर करो. नेक्स्ट इज योर माइंडसेट टिप. बी ओके विद द स्लो ग्रोथ. यू शुड नॉट फील गिल्टी फॉर हैविंग अ स्लो ग्रोथ और डूइंग वन थिंग एट अ टाइम. आप अगर एक दिन पूरा पढ़ाई को दे रहे हो और उस दिन कंटेंट को बिल्कुल भी ध्यान में नहीं दे रहे हो, दैट्स ओके. यू आर इन कॉलेज, स्कूल, व्हाटएवर, यू हैव टू डू दैट एज वेल. सो आपने एक काम तो करा है ना, उसे तो अच्छे से करा है ना, उसमें अपना बेस्ट दो, दैट्स इट. दूसरे के बारे में कल सोचना. मत फील करना कि आज मैंने कुछ यूट्यूब का काम नहीं किया या फिर आज मैंने सिर्फ यूट्यूब का काम किया, मैंने पढ़ाई नहीं करी. नहीं, सेट करो अपनी चीजें एंड डू नॉट फील गिल्टी ऑफ अ स्लो ग्रोथ. क्योंकि अगर आप साथ में स्टूडेंट हो और एक कंटेंट क्रिएटर हो सकता है आप बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट ना हो सकता है आप उतनी अच्छी क्वालिटी वीडियोस ना डाल पाओ, तो हो सकता है कि एल्गोरिथम थोड़ा इधर उधर हो जाए एंड यू आर नॉट एबल टू ग्रो वेरी फास्ट, एंड दैट्स ओके. आई ऑल्सो फेस दैट. टाइम आएगा जब आपको टाइम मिलेगा, छुट्टियां आएंगी, यू कैन ग्रो इन दैट, यू कैन post everything, you can plan much better way, and through the time you will learn, you will practice, and धीरे धीरे सब कुछ settle down हो जाएगा. It's okay as long as you are growing. It could be a slow growth, it could be a fast growth, but at least you are not still stationary on one point. You are growing in terms of your well-being, growing in terms of your education, growing in terms of your content creation, your followers, your Instagram, your views, your test, your assignments. सब चीजें हैंडल कर रहे हो आप. उन चीजों में आपने जितना एफर्ट डाला है, बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ फॉर दैट. ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपने एक चीज पे ध्यान दिया दूसरे पे नहीं किया, that's completely fine. So do not be guilty of a slow growth. Next thing we are going to talk about is these study tips or study techniques that will give you a room for creativity. What I mean to say is कि आपको पता है आपको किस तरीके से बेस्ट पढ़ाई आप कर सकते हो. आपको अपने सेल्फ नोट्स बनाना पसंद है. लाइक फॉर मी, इफ वो मेरे हाथ से लिखे हुए नोट्स नहीं है, आई कांट लर्न देम, आई कांट मेमोराइज देम, सो आई हैव टू राइट. सो हो सकता है कि आपके लिए वो अलग चीज हो, आपको बुक से पढ़ना बहुत पसंद हो, आप बस बुक में हाईलाइट करो और आप रहे हो. सो उस वे में उस टेक्निक से पढ़ो जो आपके लिए बेस्ट वर्क कर रही हो. आपको स्टिकी नोट्स लगा के पॉइंटर्स लिखना पसंद है, वैसे लिखो. आपको यूट्यूब से पढ़ना है, यूट्यूब से पढ़ो. आपको अपने स्कूल कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ने में मजा आता है, तो वो करो. आई कांट स्टडी इन लाइब्रेरी. अब तक मैं लाइब्रेरी सिर्फ एडिट करने के लिए गई हूँ. कैन यू इमेजिन? क्योंकि वहाँ पे एसी और वहाँ पे नेट आता है. मैं वहां पढ़ी नहीं हूँ अब तक, पढ़ती मैं सिर्फ घर आकर रही हूँ. सो दैट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन. मेरी रूममेट 4-4 घंटे लाइब्रेरी में बिता के आती है टू स्टडी. उससे यहाँ पे पढ़ाई नहीं होती है. तो इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन. जैसा आपको पसंद आ रहा है वैसे पढ़ो. इससे क्या होगा, यू विल हैव टाइम एंड यू विल डू द थिंग्स क्विकली, यू विल लर्न थिंग्स क्विकली, यू विल
यू विल कंप्लीट योर स्टडी टास्क मोर क्विकली एंड इससे आपके पास टाइम आएगा बाकी चीज़ों पे ध्यान रखने का, क्रिएटिविटी पे आने का, कंटेंट क्रिएशन करने का। तो बैलेंस करो, डू नॉट कॉपी एनीवन, डू नॉट टेक अ लॉट ऑफ प्रेशर, इट्स अप टू यू, जैसा आपको सही लग रहा है वैसा करो। सेट रियलिस्टिक गोल्स। अब आपने कंटेंट क्रिएशन पढ़ाई के साथ स्टार्ट कर दिया, इसका मतलब आपको रियलिस्टिक गोल्स के साथ चलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने ये डिसाइड कर लिया कि नाउ यू आर गोइंग टू अपलोड एवरी डे और यू आर गोइंग टू अपलोड एवरी डे अ शॉर्ट और 2-3 लॉन्ग फॉर्म वीडियोज इन अ वीक। दैट इज unrealistic if you have a other thing which is very well important and which is totally time taking with content creation, because it takes a lot of efforts to upload a single video. So set realistic goals कि आप अगर एक हफ्ते में एक वीडियो भी अपलोड कर रहे हो, 2 हफ्ते में भी एक वीडियो अपलोड कर रहे हो, तो अच्छे से अपलोड करो एंड उसका प्रेशर मत लो अपने ऊपर। दैट वे यू आर गोइंग टू मेक रियलिस्टिक गोल्स जिनको आप एक्चुअली अकम्प्लिश कर सकते हो, बिकॉज कोई फायदा नहीं है ऐसे गोल्स बना के जिनको आप अकम्प्लिश नहीं कर सकते, जो बिल्कुल इमेजिनरी अनरियलिस्टिक, आपके पास उतना टाइम ही नहीं है जितना आपने काम ले लिया है। अगर आपका एक्चुअली इतना सारा आपने अनरियलिस्टिक गोल सेट कर लिए हैं, बहुत सारा काम ले लिया है, तो आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाओगे एंड एक पॉइंट आएगा, सैचुरेशन लेवल आ जाएगा एंड यू विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग। जितना आपसे हो सकता है उतनी वीडियोस अपलोड करो, बट अच्छे से क्वालिटी वीडियोस अपलोड करो। क्योंकि मैंने पहले भी बहुत सारी मेरे यूट्यूब रिलेटेड वीडियोस में कहा है, यू कैन ओनली ग्रो ऑन यूट्यूब इफ यू आर सर्विंग वैल्यू, इफ यू आर सर्विंग नॉलेज, एंटरटेनमेंट, मोटिवेशन, एनी थ्री फ्रॉम दिस। आप एक क्वालिटी वीडियो अपलोड करो एंड एक रियलिस्टिक गोल सेट करो कि हाँ, इस वीक में मैं इतना पढ़ने वाली हूँ, इस वीक में मेरे को ये चैप्टर्स निपटाने हैं, एक वीडियो अपलोड करनी है, 4 शॉर्ट्स अपलोड करने हैं, एंड दैट्स इट। दैट यू कैन एक्चुअली मैनेज, बट so please set realistic goals. Okay, let's talk about my schedule, how I do. So I post one long form video in a week and shorts like 2-3 or sometimes 4 shorts in a week. And last week मैंने सिर्फ एक short upload किया था because उतना ही हो पाया and I was busy with my study and other stuff. So what I do is I balance my editing thing. When I'm in college, मेरे को कभी भी free time मिलता है कैंटीन में बैठ के या किसी lecture के बीच में, मेरे को अगर teacher नहीं है, कुछ भी ऐसा होता है, तो I start editing like I just start editing. मेरा अपना भी फोन खुल जाता है ना, I start editing and also enjoy the process of editing because उसके बिना आप बहुत बोर हो जाओगे और नहीं हो पाएगा वो। मैं ज़्यादा संडे को वीडियो अपलोड करती हूँ, तो संडे का सुबह जो टाइम बहुत होता है क्योंकि छुट्टी है, सो वो सुबह वाला टाइम होता है, मैं फटाफट अपलोड करती हूँ, क्योंकि अपलोड से पहले भी आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है, कैप्शन, डिस्क्रिप्शन, चैप्टर्स, एवरीथिंग। एंड सैटरडे फ्राइडे में मैं कभी ना कभी थंबनेल बना लेती हूँ जब भी मेरे को टाइम मिलता है, एंड थंबनेल के लिए यूज़ कैनवा। दैट्स अगर आपको एडिटिंग में ज़्यादा शौक नहीं है तो आपको स्क्रैच से थंबनेल बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स आपको मिल जाएंगे एंड दैट विल help you and ease your work. Then for the study I always complete my assignments, presentation, everything before the deadline. बिल्कुल डेडलाइन से एक रात पहले मत बैठना, उसमें आपको बहुत स्ट्रेस होगा एंड बहुत ज़्यादा क्योटिक हो जाएगा। तो उससे पहले 1-2 दिन पहले, एक दिन पहले एटलीस्ट डेडलाइन से अपना काम निपटा लो। आई ऑलवेज कंप्लीट माई वर्क लाइक 1-2 दिन पहले, टच वुड। उससे बहुत ईज में चलता है एंड इट इज़ वेरी ईजी टू हैंडल एवरीथिंग। अनदर थिंग, आई थिंक आई एम मेकिंग टू डू लिस्ट फ्रॉम ईयर्स नाउ। अगर आपको पता है कि आपके पास काम क्या क्या है, तो जब आपको जौन सा काम करने का मन कर रहा है आप कर सकते हो, आप बैलेंस कर सकते हो कि हाँ अभी मेरे को एडिटिंग करने का मन है तो मैं एडिट कर सकती हूँ, टेस्ट मैं शाम को प्रिपेयर कर लूंगी, वे यू वांट टू बी। बट आपके पास अगर काम लिखा हुआ होगा ना आपके सामने, इट विल बी मच easier and much easier for you to understand everything more quickly and to balance it all very nicely. After this, have good sleep of 7 to 8 hours at least. उससे आपका मेंटल बैलेंस अच्छा रहेगा, आंखें सही रहेंगी, बिकॉज बहुत स्क्रीन टाइम बढ़ जाता है। तो 7 to 8 आवर्स की नींद बहुत जरूरी है। ये मत सोचना कि रात रात भर बैठ के एडिट करना है या पढ़ना है। नो, that's something I would not at all suggest you all. अपने आप का, अपनी बॉडी का एंड अपनी आंखों का स्पेशली, बिकॉज स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ता है। एंड या स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्लीप से आपका पूरा दिन आप ना प्रोडक्टिवली काम कर पाओगे। एंड अपने आसपास ना ऐसे नोट्स बनाओ कि हाँ, आई एम कमिटेड टू कंसिस्टेंट कंटेंट क्रिएशन, आई एम प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिवनेस इज द की, दिस इज द डेज आई हैव बी, स्विच ऑफ योर फोन, स्टडी वेल। ऐसे कोट्स अपने आसपास बनाओ। अगर आप मेरी वीडियोज में मेरा बेड का ऐसे साइड पूरा देखा होगा, एवरीथिंग इज फिल्ड विद सच गुड नोट्स, इंस्पायरिंग कोटेशंस, सम पिक्चर्स, मोटिवेशन थिंग्स, माई विजन बोर्ड, एवरीथिंग। एंड मैंने 1-2 और ऐड करे अभी। सो दैट रियली हेल्प्स मी, दैट रियली pushes me to do something and just not sit idle at all. Main thing, what to do when exams are coming or when you are too tired to do anything. See, for example, अगर आपके schools और college में जब exams होते हैं, it definitely going to take like 1 month whole exams, और उससे एक month जो पहले का एरिया होता है उसमें भी आपको अच्छे से पढ़ना ही होता है। तो I would suggest थोड़ा सा content pre-film करके रख लो जब आपको टाइम मिल रहा हो, और random days in my life शूट कर सकते हो ऐसे टाइम में आप, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम नहीं लेते और साथ के साथ शूट हो जाते हैं। एग्जाम चल रहे हैं तो एग्जाम ब्लॉग बना लो, ताकि जब एग्जाम्स खत्म हो तो आपके पास कुछ पोस्ट करने के लिए हो।
दैट वे यू कैन मैनेज। और जो भी आपको वीडियोस पोस्ट करनी होती है ना, 1 महीने में अगर आप हर हफ्ते 1 वीडियो भी डाल रहे हो, तो उन चारों वीडियोस का टाइटल क्या होने वाला है, किस चीज़ पे वीडियो बनाओगे, वो सोच के पहले ही रख लो। सो यू कैन अकॉर्डिंगली उनका शूट, उनकी स्क्रिप्ट, उनकी एडिटिंग, सब कुछ आपके पास दिमाग में कुछ आइडिया होना चाहिए सबके लिए, आप क्या बनाने वाले हो, एग्जैक्टली टॉपिक्स क्या रहेंगे। तो वो 4 टॉपिक्स जिन पे उस महीने में आप वीडियोस बनाओगे, उनको पहले से रख लो। दैट विल रियली हेल्प यू। उससे आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग एक ही दिन में या एक टाइम पे खत्म हो जाएगी पूरे महीने के लिए। नाउ यू जस्ट हैव टू मेक दोस 4 वीडियोस एंड नथिंग एल्स। यू डू नॉट हैव टू थिंक कि अब क्या बनाऊं, तब क्या बनाऊं। यू डू नॉट हैव टू ब्रेनस्टॉर्म अगेन एंड अगेन इन अ होल मंथ। एंड शॉर्ट्स के लिए ऐसा है कि जस्ट गो विद द फ्लो टाइप्स होता है, चलते चलते बना लिया, कोई एक थॉट आया उस पर बना लिया, कोई स्टोरी टेलिंग रील बना ली, कोई डे इन माई लाइफ बना लिया, व्हाट आई डिड इन अ डे बना लिया, शॉपिंग वीडियो बना ली, छोटी सी हॉल वीडियो बना ली, और समथिंग whatever you want to post on shorts, just post it, because shorts पे सब चलता है, literally सब चलता है। At the end I just want to say that it's just the balance, it's just the priority, it's just your mindset, it's just that be productive and everything will be settled down and easily manage YouTube with your studies. Highly motivated when you are highly ambitious and जब आपने सोचा हुआ है कि हाँ मुझे करना ही है, this is my dream and this is my work, I have to manage both of them, and फिर आप मैनेज कर ही लोगे। एंड आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, आपको अब एक मोटिवेशन आई हो अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने के लिए एंड कैसे उसे आपको बैलेंस करना है। एंड इफ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन टू नेवर मिस एनी अपडेट फ्रॉम माय साइड टू yours. Now I'm gonna meet you in this video, and in this one I have shared that how to grow on YouTube in 2025. This is an amazing video. I've shared the common mistake with people do with the solution, so it is a must watch. I'm gonna meet you in this one. Bye.